أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، فرقان علی، الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ میں منصوبات کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ آپ نے شروع میں ہی دیکھا ہوگا کہ منصوبات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ ان میں سے جب بھی منصوبات کا ذکر آتا ہے تو مفاعیل خمسہ کا آتا ہے، 5 مفعول، اور پانچوں مفعول ہم نے پڑھ لیے۔ مفعول مطلق، پہلے مفعول بہی پڑھا، نہیں مفعول مطلق پڑھا، پھر مفعول بہی، ٹھیک ہے، پھر مفعول فی اور مفعول لہو اور مفعول معہ ہم نے پڑھ لیا۔ منصوبات میں 5 تو یہی ہوتے ہیں، حال کے بارے میں ہے، حال ہے، وہ میں منادہ پڑھ چکے۔ اس بات چل رہی جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، جو فقط، ٹھیک ہے، ہاں، جو منادہ جو ہے وہ اسی میں آ گیا، قائم ہے۔ مفعول بہی میں ایک طرح سے جو منصوب ہوتا ہے منادہ، پیچھے پڑھا نہیں پڑھا، مفعول بہی ہے وہ ایک طرح کا فعل محذوف کی وجہ سے، جہاں پہ اس کے فعل کا عامل کا وجوباً حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم نے مفاعیل پڑھ لیے، لاسٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ مفعول معہ پڑھا تھا۔ مفعول معہ کے بعد دیکھیے تمرینیں دیکھیں، میز بین واو المعیت و واو العطف۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ قرآن کی آیات میں، روایات میں سے تمیز دینی ہے کہ واو معیت ہے یا واو عطف ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجمعوا امرکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ واو کی اصل عاطفہ ہونا ہے، اور جب تک وہ عاطفہ ہونا اس کا ممکن ہے تو پھر آپ معیت نہیں مان سکتے۔ معیت کی شرط یہی ہے نا کہ وہ مفعول معہ میں واو کی شرط کیا ہے؟ اس میں مفعول مالی اصغر ایسا ہے اس میں منصوب ہے کہ جو ایک واو کے بعد آتا ہے جو معیت کے معنی میں، یعنی صراحتاً اس میں واو معیت میں۔ اب لیکن یہاں پر اجمعوا امرکم و شرکاءکم میں امرکم منصوب ہے، شرکاءکم بھی منصوب ہے، تو یہ عاطفہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ واو یا بنیا، قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر، تو یہ وامر فعل امر ہے، اقیم فعل امر ہے، اس کے اوپر عطف ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور وصبر بھی اسی پہ عطف ہے، تو اس کا مطلب یہ واو عاطفہ ہے۔ واو کیا ہے؟ یا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا ایاک ومصادفۃ الاحمق، ایاک، واو کون سی ہے؟ تو ایاک وہ، یہ ایاک و مصادفۃ الاحمق ہے کیا؟ آپ نے یہ چیز پڑھ چکے ہیں، تحذیر، اقرا، تحذیر، اقرا ہے نا یہ ایاک و مصادفۃ الاحمق، ٹھیک ہے۔ تو واو اس میں عاطفہ بتائی تھی، پیچھے جا کے دیکھیے اقرار تحذیر میں کہ واو کون سی واو ہے۔ یا چوتھا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، کل تقی، نماز ہر متقی کی کیا ہے؟ ٹھیک، آئیے، والحج جہاد کل ضعیف۔ اب دیکھیے واو عاطفہ ہے، حج کو قائم کا عطف کیا ہے؟ صلاۃ کے اوپر عطف کیا ہے، یا ولکل شیء زکات و زکات البدنی، بولیے جی، سیام، یہ سب واو عاطفہ ہیں، اور یہ سب، لیکن کیف حالک والحوادث، یہ واو معیت ہے، یہ واو معیت ہے۔ والحوادث، یا سافرت الی الشام انا واخوک، یہ عاطفہ ہے، عاطفہ ہے، انا واخوک۔ مررت بزید و ایاہ، جی مررت بزید و ایاہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زید میرے پاس سے گزرا، وسلمت علیہ و جمیع اخوتی، علیہ کے بعد واو ہے نہیں، کب بتایا تھا کہ
واو अगर ज़मीर मजरूरी के बाद हो तो क्या बताया था, वो लिखा था बताया था जी, ज़मीर मजरूरी के बाद हो तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, कब वाव का आतिफा होना मना है, कब वाव का आतिफा होना है मना है, कब, एक वजह एक सूरत यही थी कि जब वाव जमीर मजरूरी के बाद हो तो वह आतिफा नहीं हो सकती, इसका मतलब वो क्या है मफूले वाव माइयत है, वाव क्या है वाव माइयत है, सल्लम तो अलैहि वो जमीय इख्वतिही। भाई रायतुका अंता वसाहिबना, बताइए वाव माइयत है नहीं क्योंकि अंता उसकी वाइये नहीं आई है, जमीर मुनफसिल के जरिए ताकीद, कुन अंता वब्न अम्मे का मुतवाफिकैन, कुन अंता वब्न अम्मे का मुतवाफिकैन, यहाँ ये क्या है वाव माइयत लेना, क्योंकि आतिफा ले सकते हैं लेकिन माना बदल जाएंगे कुछ और, वही जो वहां पे बताया था कि कल आखिर वाली मिसाल याद है, अब नीचे दे रखा आरिबिल अमसलतित्तालियत, नीचे की मिसालों में इराब कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजि'i इला रब्बिक रादियतन मुतमइन्नतु इरजि'i इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, इराब करना है आपको, या क्या है ये हरफ निदा, अय्यतुहा क्योंकि अलिफ ला क्या है, किसके साथ है, अन-नफ्स अलिफ लाम के साथ है इसलिए अय्यतुहा लाए, हम्म, ये इसी में आपको एराब पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद असअलतुल आम्मा, उमूमी सवालात हैं, अल असअलतुल आम्मतु, ज़ा ये वाली अलामत सही, अमामल जवाब सही, सही जवाब के सामने सही की अलामत लगाइए, अल मफूल मुतलक हुआ मस्दरुन युज़करु बादा फ़िल मिन लफ्ज़िही, सही है नहीं, मस्दरुन युज़करु बादा फ़िल लिज़ाहि सबबिही, नहीं, मा वक़ा अलैहि फ़िल फ़ाइल ये तो मफ़ूल बिही है, और जीम वाला मफ़ूल लहू है, इसम ज़मान मकानी ना ये मफ़ूल फ़ी है, अलिफ सही है इसके सामने बताइए, क्योंकि मफ़ूल मुतलक एक मस्दर है जो फ़ेल उसके लफ्ज़ अपने ही लफ्ज़ के फ़ेल के बाद आता है, इस्मुल फ़िअल याती मुतअद्दियन या मालूमन व क़द याती मजहूलन, या इस्मुल फ़िअल लाज़िमन या अलिफ व बे, हम्म, इसमें फ़ेल लाजिम आता है, लाजिम आता है, ठीक है, हाँ जाके देखिएगा इसमें फ़ेल जो मफ़ूल बिही का आमिल गिनाए हैं, क्या कौन सी चीज़ें मफ़ूल बिही में अमल कर सकती हैं, फ़ेल शिबे फ़ेल वही इसमें फ़ेल वगैरह उसमें जाके, ये कह रहा है लफ्ज़ अन-नसब फ़ी जुमलत अय्युहल मलिकुल करीमुन नसबी, बताइए मजरूरुन महल्लन अल इज़ाफ़ती, या तो महल्लन मजरूर है महल्लन इज़ाफ़त की बिना पर, मरफ़ूउन लफ्ज़न व मजरूरुन महल्लन, या मरफ़ू है लफ्ज़न महल्लन मंसूब है, या मजरूर है लफ्ज़न महल्लन मरफ़ू है फ़ाइलियत की बिना पर, जी दाल सही है, जाके देखिएगा कौन सी बात है ये, काय की मिसाल है ये, ये मिसाल कौन से बात कौन से उससे है ये मिसाल, ये अय्युहल करीमुल नसबी, कहाँ पीछे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था है, हम्म, अय्युहल मलिकुल करीमुन नसबी या नसबू, अरे मुनादा में ही तो पढ़ा था ये जाके, या सिफत मुशब्बहा में, सिफत मुशब्बहा में जाके देखिए, तकून जुमलतुल इख्तिसास फी मौज़िन नस्ब अलल हाल या फी मौज़िन रफ़ अलल फ़ाइलियत या फी मौज़िन नस्ब अलल मफ़ूलियत, इख्तिसास मफ़ूल बिही की बिना पर मंसूब होता है, लेकिन इसमें जाज़ा फ़ीहल वजहान दो वजह जायज़ हैं इख्तिसास में, ठीक है, तो आपको बस देख के इसको प्रैक्टिस देख के आना है कल को, या तारीज़न फी जुमलती, जो इस जुमले में जो तारीज़न है, नशर तो हाजिल मकालत तारीज़न बिदावत अल्लती बैनना, मफूल मुतलक है, हाल है, तमीज़ है, मफूल लहू है, मफूल लहू, अल जिहातुल मकादीर मिन कबील अस्माइल मकानिल महदूद में से है ये, या ज़र्फ़ ज़मान में से है,
یہ اسماء المکان المصوغ من المصدر نہیں، اسماء المکان المبہم ہے. کیا ہے یہ؟ اس میں مکان ہے اور مبہم ہے. یومن فی جملۃ یوم الجمعۃ مبارکن منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر یا ابتدائیت کی بنا پر مرفوع ہے؟ ابتدائیت کی بنا پر مرفوع ہے. الاصل فی المفعول به، مفعول به میں اصل کیا ان یؤخر عن عاملہ، ٹھیک ہے، ان یقدم علی عاملہ ولا الفاعل، نہ، اصل یہ ہے کہ ان یؤخر عن الفاعل مطلقا، نہیں، ان یؤخر عن الفاعل ما لم، کیا ہے لکھا ہوا اس میں مٹ رہا ہے، ما لم یقضی تاخیرہ عنہ الی اخلال لفظی و معنی. اصل مفعول به میں اس کا مؤخر ہونا ہے اپنے عامل سے، ٹھیک ہے نہیں. ان یؤخر عن الفاعل ما لم یقضی تاخیرہ عنہ الی اخلال لفظی و معنی. مفعول به ظاہر ابدا نہیں، یکون صریحا و مؤولا بالصریح، صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اما ظاہر و مضمر مفعول به، بے اور جیم صحیح ہے، بے اور یعنی جیم اور بے، جیم اور بے. شرط المتعجب من، متعجب منوں کی شرط کیا تھی؟ معرفہ ہو یا نکرہ مبہمہ ہو یا نکرہ مختصہ ہو یا الف و بے، الف و بے، یا تو معرفہ ہو یا نکرہ ہے تو مختص ہو. عجیب عن الاسئلۃ الاعرابیۃ القرآنیۃ التالیہ، جواب دیجئے نیچے آنے والے سوالات اعرابی جو قرآنی ہیں. فی الآیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی نہی، کیا ہے؟ انی نہیت ان اعبد، کیا ہے؟ ما ہوا محل ان وصلت ان اعبد، اس کا صلہ کیا ہے؟ ان جو ہے وہ اعراب کیا ہے اس کا؟ ان، اب اس کے صلے کا ان اعبد کا کیا اعراب ہے؟ مفعول به، انی نہیت یا نہیت، مفعول به، مفعول به. ما هو محل حیث من الاعراب، اس آیت میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کر کے لانا حیثوں کا کیا اعراب ہے یہاں پہ، کیا محل ہے. یا کما لم یؤمنوا به اول مرۃ، اس آیت میں لماذا کلمۃ اول منصوبۃ، اولا کیوں منصوب ہے؟ کما لم یؤمنوا به اول مرۃ، بولیے کیوں منصوب ہے؟ اول مرۃ. یا ما هو سبب نصب کلمۃ صفحا، آیت قریبا قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا، مفعول له ہے، مفعول ما هو سبب نصب کلمۃ یوم فی الآیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر الناس یوم تأتیہم، ظرف کی بنا پر منصوب ہے. التمارین العامہ، عام تمرینیں. عین المفاعیل فی الجملۃ الآتیہ، آنے والے جمل میں مفعول معین کیجیے. کون سا مفعول ہے؟ وہ بین نوعہ و اعراب، اس کا نوعیت بھی بیان کیجیے، اعراب بھی بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل، ہو اور سبیلا مفعول به ہیں، اول اور دو منصوب ہیں، سبیلا لفظا منصوب ہے، ہو محلا منصوب ہے، اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک ہے نہیں. وترى الجبال مفعول به ہے، ٹھیک ہے. جامدتن کیا ہے؟ مفعول به ہے، تحسبو، ہا بھی مفعول به، وہی تمر، مر السحاب کیا ہے؟ مرہ، تمر مرہ، مطلب سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تعملون، یہ آپ کو کرنا ہے. کون سا مفعول ہے وہ؟ پھر انہوں نے کہا شکل الکلمات التي تحت خط، وہ کلمات جن کے نیچے خط ہے، لائن کھینچی ہوئی، ان کی کیا کیجئے؟ تشکیل کیجئے، معین کیجئے. کیا ہے؟ دخلت علی علی ابن ابی طالب، اعراب دیجئے. فیما تفک، فیما تفکر یا امیر المومنین. چلیے یہ بات ختم ہوتی ہے، بات آتی ہے. دیکھیے عارب القرآن والحدیث، قرآن اور حدیثوں کو اعراب کیجیے. اس میں وہ بسم اللہ، یا انہوں نے دے رکھا ہے، خود نے اعراب کرا رکھا ہے.
एराबुल कुरान वल हदीस, अल कुरान करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। जाऊ क्या है, वाव क्या है, हस्ब मा कबलहा उसका मा कब्ल जो है उसके मुताबिक ये वाव क्या है। जाऊ क्या है, फेल माजिन मबनी अल ज़म है, वाव उसकी ज़मीर है मुत्तसिल है मरफू है फाइल की बिना पर। इयाहुम, ठीक है, अबाहुम है ना, अबा मफूल है, मफूल बिही है, मंसूबा अलामत नफ्स क्या है, अलिफ है, लिअन्नहु मिन अस्माइ सित्ता, इसलिए कि अस्माइ सित्ता में से। हम क्या है, ज़मीर मुत्तसिल फी महल जर है, क्योंकि अबा के मजरूर की वजह से, मुज़ाफिल की वजह से। ईशान मफूल फी है, ज़र्फ़ मकान ज़र्फ़ ज़मान है, मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है, फतह है। वफ़ी है अक़वालुन, इसमें कुछ कौल है, उनमें से एक ये है कि अन्नहु जमो आशिम, इशा क्या है, आश की जमा है, जैसे काइम व क़ियाम, ऐसी आशिम की। या अन युक़रा बिज़म्मिल ऐन, ऐनुल फेल पे ज़म्मे वल अस्लु उशात, ऐन जो है इसके अंदर ऐनुल फेल नहीं, लफ्ज़ ऐन, हरफ ऐन जो है इसमें ज़म्मा उशात पड़ी है, जैसे गाज़िन व गुज़ातिन। भाई गाज़िन मुफरद है तो गुज़ात जमा है, तो ज़म्मा पड़ी है। अगर ये आशिन की जमा है तो उशात। फ़हुज़िफ़तिल हाउ वज़ीदत अलिफ़ुन एवज़न मिनहा, हा हस हो गई, गुज़ात में से जो तय थी वो हस हो गई उशात में से, और उसकी जगह क्या आ गया, अलिफ आ गया उससे पहले। सुम्मा कुलिबतिल अलिफ हमज़तन, फिर अलिफ हमज़े से बदल गया। वो अलल कौलैनी, दोनों कौलों की बिना पर, यकून ईशान मंसूबन अल हाल, हाल की बिना पर मंसूब है अगर ये कौल मान लें तो, ठीक है। फिर ज़र्फ की वजह से नहीं, हाल की वजह। यबकूना फ़िल मुज़ारे है, मरफू है, अलामत रफ़ जाप जाते हैं नून है, नून रबी, और वाव इसमें ज़मीर है मुत्तसिल है, मरफू है फ़ाइल की बिना पर। वह जुमलत यबकून जो है मंसूब है, हालुम मिनल वाव, वाव हालिया का वह, ठीक है। अब ये वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा आप जानते हैं, शुअरा क्या है, वाव तो इस्तेनाफ के, शुअराउ मुब्तदा है, मरफू अलामत रफ़ क्या है, ज़म्मा है। यत्तबिउहुम फ़िल मुज़ारे मरफू अलामत रफ़ आप जानते हैं ज़म्मा है। हम ज़मीर मुत्तसिल है, मंसूब है, इसका मफ़ूल बिही है, मुक़द्दम है, और मफ़ू फ़ाइल क्या है, ग़ावून, फ़ाइल मरफू है, अलामत रफ़ वाव है। अलामत रफ़ वाव है, क्योंकि जम मुज़क्कर सालिम है। और ये पूरा का पूरा यत्तबिउनल गावून मरफू है खबर की बिना पर शुअरा की, व ज़मीरुहुम राबित है मुब्तदा और खबर के दरमियान, राबित है यत्तबिउ, राबित की भी जरूरत होती है ना, अगर खबर जुमला हो तो एक राबित होना चाहिए, तो राबित क्या है, होम है जी। वाला करात ईसा बिनस्बी शुअरा, ईसा की करात की बिना पर शुअरा पढ़ा हुआ, शुअरा है तो शुअरा पढ़ेंगे तो मफूल बिही ये मंसूब है, इश्तिबाब इश्तिगाल माना जाएगा, फिर और अलामत क्या है इसकी, फतह। या बुनैया, या का वो मुसादक़तुल अहमक, आइए देखिए, या बुनैया आप जानते हैं, या अदाते निदा है, बुनैया असल में था ये बुनई, असलहू बुनैबुन था, तस्गीर है, इब्न क्या है, मुनादा है, मुज़ाफ या मुतकल्लिम की तरफ मंसूब है। अलामत नस्ब क्या है, फतहा है, पोशीदा है या के ऊपर, दूसरी या के ऊपर, बुनई या जो है वो हस्फ है, वो ज़मीर थी मुत्तसिल थी, महल जर में थी, मुज़ाफ इलैह थी। या का ज़मीर मुनफसिल महलन मंसूब है, मफूल बिही है, फ़ेल महसूफ की बिना पर, असमत क़े या का। वाव क्या है, वाव हरफ अत्फ है, मुसादक़ा मफूल बिही है, फ़ेल महसूफ की तरफ असमत एहज़िर, वो मंसूबुन व अलामतु अल फ़त्ह व हिय मुज़ाफ़तुन मुज़ाफ़ है। अहमक मुज़ाफ़ इलैह है, मजरूर है, अलामत जर कसरा है। जुमला एहज़िर मसादक़तल अहमक़ी, अत्फ़ुन ये अत्फ़ है क़े नफ़्सका के ऊपर। अब आपको ये करके दिखाना है, बाकी इंशाल्लाह आप ही देखिए हाल की बात। हाल किसे कहते हैं, हाल मंसूबात में एक आता है, हाल मंसूबात में एक आता है हाल। माही अल हाल, हाल किसे कहते हैं आप जानते हैं, कैसा इसमें मंसूब है, बोलिए, जो फेल को अंजाम पाते वक्त जो मनह मुकद्दमाती में पढ़ा था आपने, फाइल या मफूल की हालत और कैफियत को बताया कि फाइल फेल अंजाम देते वक्त फाइल किस हालत में था, या मफूल, या बाद में का दोनों की हालत को बता सकता है। इन्होंने क्या कहा है हाल की तारीफ में, अल हाल वस्फ, हाल एक वस्फ होती है, सिफत होती है, नकेरतुन नकरा होती है, वस्फ होती है, नकरा होती है, मंसूबतुन मंसूब होती है, और मुश्तक होती है,
ठीक है। मुश्तक होता है हाल, वाक़िअतुन बाद तमाम कलाम, और कलाम के तमाम होने के बाद ये वाक़ होता है। क्यों वाक़ होता है ये हाल? वस्फ नकरा मंसूब मुश्तक, ठीक। तो भाई ये ना बयान करते है आता साहिब हाल, अपने यानी साहिब हाल की यानी जुल्हाल की हैत को बयान करता है। इंदा सुदूरिल फेल, फेल के साथ ये होते वक्त अपनी ये बात कहना ठीक है। वो जो वहां पे कहा था ना कि फेल के सादिर होते वक्त फाइल या मफूल की हालत को बयान करे, इससे बेहतर यह है कि आप कहें फाइल या मफूल की, सीधा सीधा कहें कि साहिब हाल की। अब साहिब हाल फाइल भी हो सकता है, साहिब हाल मफूल भी हो सकता है, दोनों में नहीं। जुल्हाल की अपनी यानी साहिब हाल जिसका ये हाल है उसकी हालत और कैफियत को बयान करता है फेल के सादिर होते वक्त, ठीक है। लेकिन वाक़ कब होता है यह हाल? कलाम के मुकम्मल होने के बाद। और हाल खुद होता क्या है? वस्फ होता है, नकरा है, मंसूब होता है, मुश्तक होता है। फायदतुन, यहाँ पे जो नुक्ता है, अल मुराद बिवुक़ूइल हाल बाद तमामिल कलाम ही, ये जो इन्होंने कहा कि हाल वाक़ होता है कलाम के तमाम होने के बाद, इससे मुराद क्या है? वुरूदुहा बाद जुमलतिन, यानी इसका वारिद होना एक ऐसे जुमले के बाद कि मुस्तगनियतिन अनहा, जो इससे बेनियाज हो, मिन जहत तरकीबिल कलाम, कलाम की तरकीब के एतबार से। कलाम की तरकीब के एतबार भाई फजला हुआ ना, ये कलाम तो पूरा हो चुका, लेकिन ला मिन जहतिल माना, माना के एतबार से नहीं, लफ्ज के एतबार से इससे बेनियाज हो। एज इसलिए कि कसीर मा तकुनुल हालु लाज़िमतन, तकुनुल हालु लाज़िमतन लिइत्मामिल मानल जुमलत, इसलिए कि बहुत सी दफा ऐसा होता है कि हाल जो होता है लाजिम होता है जब हम जुमले के माना को तमाम करने के लिए, जरूरी होता है जुमले के माना को पूरा करने के लिए, जरूरी होता है। लिहाजा फज़ाहिरन ज़ाफ़िरन फिल मिसाली मिस्ल फी मिस्ल हालुन फिल मसले, मिसाल के अंदर जो ज़ाफ़िर है, आदल क़ाइदो मिनल हर्ब ज़ाफ़िरन, तो ज़ाफ़िर जो है वो क्या है? हाल है। लिअन्नहु वक़अत बादा अन तम्म तरकीबुल जुमलतिल फ़िअलिय्यति तरकीब, ठीक है। तम्मा तरकीबुल जुमलतिल फ़िअलिय्यति, जुमला फ़िअलिया की तरकीब के पूरा होने के बाद, आदल क़ाइदु मिनल हर्ब, आदा फ़ेल, कायद फाइल, मिनल अब जार मजरूर मुतालिक आदा से पूरा हो गया, नहीं हो गया, उसके बाद वाक़ हुआ है। वला यस्तगनी अना मिन जिहतिल माना, लफ्ज़ के एतबार से तो बेनियाज है ज़ाफ़िर से, लेकिन माना के एतबार से थोड़ा ही कि वो कायद जो है वो रहबर जंग से पलट आया, लेकिन माना तो पूरे होंगे ना। किस हालत में पलट आया? कामयाब पलट आया, हाल पे आया, जीत के आया, माना के एतबार से नहीं। वही नकरतुन, और देखिए ज़ाफ़िर नकरा भी है, मुश्तक भी है, इसमें फ़ाइल है ज़ाफ़िर, और हैत को बयान भी कर रहा है साहिब हाल की। अल्लती काना अलैहा साहिबुल हाल, वो हालत, वो हैत के जिसके ऊपर साहिब हाल है, यानी कायद जो है वो किस हालत में पलटा है? ज़ाफ़िर, अल कायद फिल हाल औदतिही मिनल हर्ब, यानी कायद जंग से पलटते वक्त की हालत क्या थी उसकी? ज़ाफ़िर, कामयाब था, ठीक है। वो साहिबुल हाल, दूसरा सवाल क्या था? तो फिर हाल की तारीफ की हुई। हाल एक ऐसी वस्फ है, नकरा है, जो मंसूब होती है, मुश्तक होती है, और कलाम के तमाम होने के बाद आती है, ताकि वो साहिब हाल की हैत को, साहिब हाल की हैत को बयान करता है। हाल फेल को सादिर होते वक्त साहिब हाल की क्या हैत है उसको बयान करता है। जैसे आदल कायदु मिनल हर्बी ज़ाफ़िरत, तो ज़ाफ़िरत देखिए हाल है, क्योंकि ये वस्फ है, नकरा है, मंसूब भी है, मुश्तक भी है, फाइल है, इसमें फाइल है। और ये जुमले के बाद अल कायद मिनल हर्ब, कलाम के मुकम्मल होने के बाद आया है। और साहिब हाल जो कि यहाँ कायद है, उसकी हालत को ये फेल आदा नहीं, औदत के वक्त, पलटते वक्त उसकी हालत और कैफियत को बयान कर रहा है, हयात को बयान कर रहा है कि कामयाब पलटा। समझ में आया कि नहीं? फिर इन्होंने बताया कि हाल जो है जुमले के तमाम होने के बाद वाक़ हो, इसका क्या मतलब है? यानी हाल एक ऐसे जुमले के बाद आए कि जो लफ्ज़ के एतबार से, तरकीब कलाम की तरकीब के एतबार से तो उससे बेनियाज हो, लेकिन माना के एतबार से नहीं। इसलिए कि बहुत सी दफ़ा माना के एतबार से हाल जो है वो जुमले के माना को कामिल करता है। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुय्यद बाशिद। खुदा